নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। শুরু করছি আজকের বাংলার খবর কি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৃজিতা। বাংলার খবর মানে আপনার খবর, আপনার পাড়ার খবর। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দার্জিলিং থেকে দীঘা, পুরুলিয়া থেকে পেট্রাপোল। আপনার অভিযোগ, আপনার প্রতিবাদ, আপনার কণ্ঠস্বর হয়ে আমি সৃজিতা শুরু করছি আজকের বাংলার খবর কি। কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে রোড শো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রায় 200 মিটার রোড শো করেন তিনি। শ্রী শ্রী মা শারদার পুজো করে শুরু হয় রোড শো। শ্যামবাজার 5 মাথার মোড় থেকে শুরু হয়ে রোড শো শেষ হয়ে গিয়ে সোজা সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে। প্রধানমন্ত্রীর রোড শো দেখতে মানুষের ঢল উত্তর কলকাতার রাজপথে। এই মুহূর্তে অপেক্ষার অবসান। আমি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি সেখান দিয়ে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছি সেখান দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছাবেন ঠিক এই রাস্তা দিয়ে। এবং এই রাস্তা দিয়ে পৌঁছানোর আগে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে পুষ্প বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা পথে। এই মুহূর্তে পুরো পুষ্প বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই রাস্তা ধরেই আমরা একদিকে ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্যামবাজার থেকে আসার, এবং অন্যদিকে দুদিক থেকে মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিপুল আয়োজন। এই মুহূর্তে আমি হেদুয়ার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছি। হাতিবাগান হেদুয়া ক্রস করে বিবেকানন্দ রোডে, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটে, সেই জন্মভিটেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছাবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার আগে থেকেই ছিল সাজো সাজো রথ। রাস্তার দুধারে ছিল মানুষের ঢল। গেরুয়া রঙে ঢেকেছিল রাস্তার দুধার। অবশেষে এলো সেই সন্ধিক্ষণ। উত্তর কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথমে বাগবাজারে শ্রী শ্রী মা শারদার বাড়িতে পূজার্পণ, পরে শ্যামবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্যামবাজার 5 মাথার মোড় থেকে শুরু হয় বিজেপির নির্বাচনী প্রচার। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রোড শো। 7ম দফার নির্বাচনের আগে এটাই শেষ রোড শো। শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে হুট খোলা চেপে নরেন্দ্র মোদী। শ্যামবাজার থেকে সিমলা স্ট্রিট, স্বামী বিবেকানন্দর বাড়ি পর্যন্ত রোড শো। मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, 2019 का भी चुनाव देखा, और मैं कह सकता हूं कि चुनाव 14 का हो या 19 का, ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपार विश्वास का चुनाव है, और एक प्रकार से ये चुनाव पूरी तरह देशवासी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। देशवासियों के पुरुषार्थ से चुनाव आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो निमित्त हैं। স্বামী বিবেকানন্দের বাসভবনে নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রোড শো শেষ করলেন প্রধানমন্ত্রী। ময়ূখ রঞ্জন ঘোষের রিপোর্ট, রিপাবলিক বাংলা। এই নির্বাচন সব থেকে আলাদা। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মধ্যে সব থেকে ভালো ফল করবে। উত্তর কলকাতায় নির্বাচনী প্রচারে এসে রিপাবলিক বাংলার সিনিয়র এডিটর ময়ূখ রঞ্জন ঘোষকে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে রিপাবলিক বাংলায় আমি রয়েছি এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন দ্য न्यूज मेकर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, रिपब्लिक बांग्ला में पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। बांग्ला को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोदी जी। मोदी जी, ये जो पूरा जो माहौल है, हजारों में
लोग यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए? लोगों को रोका गया, 144 144 इशू किया गया, बहुत सारे जगहों पे रोक नहीं पाए। ममता बनर्जी को मोदी से इतना डर क्यों है? उनको मुझसे डर नहीं है, वो स्वयं से डरती है। उनको लगता है कि उन्होंने जो झूठी मायाजाल खड़ी की हुई है वो गुब्बारा फूट चुका है। बंगाल की जनता उनके कुकर्मों को भली भांति समझ गई है और बंगाल के नागरिकों का, बंगाल की भावी पीढ़ी का और बंगाल का वो भारी नुकसान कर रही है। ये अब बंगाल के लोगों के मन में कन्विंस हो चुका है और इसलिए वो बचने के लिए रास्ते खोज रही है। क्या लग रहा है मोदी जी, बहुत ही बेहतरीन इस बार रिजल्ट बंगाल से होगा क्या? बार बार आप बोल रहे हैं। मैंने पूरे देश के चुनाव में भ्रमण किया है। मैंने 2014 का भी चुनाव देखा था, 2019 का भी चुनाव देखा और मैं कह सकता हूं कि चुनाव 14 का हो या 19 का, ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपार विश्वास का चुनाव है और एक प्रकार से ये चुनाव पूरी तरह देशवासी इस चुनाव को लीड कर रहे हैं। देशवासियों के पुरुषार्थ से चुनाव आगे बढ़ रहा है। हम लोग तो निमित्त हैं और सामान्य मानवीय का संकल्प बन गया है विकसित भारत का। ये इस कैंपेन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मोदी जी, 21 दिन हो गए, 3 हफ्ते। हुमायूं कबीर तृणमूल के जो एमएलए है उसने बोला था हिंदुओं को काट के भागीरथी में बहा देंगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम को इंसल्ट किया और इसके बाद बोला रामायण महाभारत सब कुछ खत्म हो जाएंगे, कुरान। लेकिन मेरा विकास का जो कहानी है वो खत्म नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे ममता जी? देखिए, ममता जी की राजनीति इसी पर निर्भर है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट जिहाद के लिए वो लगातार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाना, दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाना, कोई जय श्री राम बोले तो लड़ाई लड़ लेना और वो परंपरा उनकी अपनी पार्टी के हर व्यक्ति में आई है और इसलिए वो सभी हिंदुओं को डुबो देने की, बहा देने की, बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है और नेशनल मीडिया जो आए दिन जो खान मार्केट गैंग है वो ऐसे ऐसे विषयों को उछालती है, उनके ध्यान में ये नहीं आता है कि इतना गंभीर मुद्दा है कि देशवासियों को गंगा में बहा देने की बातें हो रही है। ममता जी तो चुप है, उनकी पूरी गैंग चुप है। मोदी जी, बंगाल जहां पे हम खड़े, एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, हम लोगों का क्या कुछ नहीं था, इंडस्ट्री लेके ट्रेड कल्चर सब कुछ था। अभी हम लोगों का जो ग्लोरी है वो है नहीं। आप ये गारंटी दे सकते हैं क्या, जिस फैक्ट्री को सिंगूर से आप टाटा का फैक्ट्री सानंद में लेके गए थे, अगर यहाँ पे डबल इंजन सरकार हो तो सिंगूर में फैक्ट्री होगा, नंदीग्राम में फैक्ट्री होगा, भांगोड़ में, डायमंड हार्बर में, सब जगह फैक्ट्री होगा और हम मुंबई दिल्ली के साथ टक्कर देंगे विकास में। मेरा गुजरात का अनुभव है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जहां 10 साल में 7 साल अकाल होता है। गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है जो बंगाल के पास है। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास नमक है और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी हमने धीरे धीरे मेहनत करके उसको एक इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया। बंगाल का तो पूरा हिस्ट्री इंडस्ट्री का है। बंगाल के पास बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन यहाँ पहले वाम वालों ने लाल झंडे के जुलूस निकाल करके सारी इंडस्ट्री को ताला लगा दिया। लोग भाग भाग करके कहीं और चले गए। अब बाद में सोचा था कि शायद टीएमसी आएगी तो सुधार करेंगी। अब वो इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है
लेकिन किसी भी इन्वेस्टर को जो सुरक्षा चाहिए, जो विश्वास चाहिए कि यहाँ की पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहेगी, वो जब तक नहीं आता है कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा। और इसलिए बंगाल के विकास के लिए, बंगाल के नौजवानों के भविष्य के लिए इस सरकार को हटाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मोदी जी अगर आप खुद अगर डबल इंजन सरकार हो, यू हैव बीन वन ऑफ द एक्सपर्ट इन ब्रिंगिंग बिजनेस इन गुजरात, बंगाल के लिए वो क्या करेंगे आप? डबल इंजन मैंने उनको पहले भी एडवाइस दी है कि आपको ये करना चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के हर राज्य को क्योंकि हमने G20 अलग अलग राज्यों में क्यों किया, इसीलिए किया कि उन राज्यों का प्रोजेक्शन हो, वे अपने राज्यों को फोकस करें ताकि दुनिया का ध्यान जाए। तो मेरी तरफ से जो भी मदद चाहिए मैं बढ़ चढ़कर मदद देना चाहूंगा। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक बांग्ला के सभी दर्शकों की तरफ से ये जो चीज है, इससे शायद बहुत कुछ पता चल रहा है। इस बार क्या यहाँ पे भी मोदी मैं सरकार? मानता हूँ पूरे देश में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस बंगाल के लोकसभा के चुनाव में रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ধন্যবাদ স্যার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রিপাবলিক বাংলাকে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার এবং সবচেয়ে বড় যে সাক্ষাৎকার, তাতে একাধিক কথা বললেন। এবং এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ, 4-5 থেকে বহু মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছেন যারা নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চান। নরেন্দ্র মোদী রিপাবলিক বাংলায় বললেন যে যদি নরেন্দ্র মোদী এখানে বাংলায় বিজেপি সরকার আনতে পারেন, তবে তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে গুজরাটে ইন্ডাস্ট্রি এনেছিলেন ঠিক সেভাবে ইন্ডাস্ট্রি এখানে আনবেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য হাজারে হাজারে মানুষ এই মুহূর্তে রয়েছে। এবং হাজারে হাজারে মানুষ এই মুহূর্তে মোদীকে একটাই কথা বলছেন, নরেন্দ্র মোদীকে, যে এবার অভূতপূর্ব রেজাল্ট হবে বাংলাতে। ক্যামেরা পার্সন রজনীর সঙ্গে ময়ূক রঞ্জন ঘোষ, রিপাবলিক বাংলা, উত্তর কলকাতা। 1 জুন শেষ দফার ভোট, নির্বাচনী লড়াইয়ে শেষ লগ্নে ফের বাংলায় প্রধানমন্ত্রী। অশোকনগর এবং বারুইপুরে জনসভা করলেন নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি থেকে তোষণ, মোদীর নিশানায় ছিল শাসক দল তৃণমূল। বাংলায় সর্বাধিক আসন জয় আত্মবিশ্বাসী বিজেপি। আর তা সুনিশ্চিত করতে বহুবার বঙ্গ সফরে এসেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবারও বারাসাতের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার এবং বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রর সমর্থনে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি যাদবপুর এবং কলকাতা দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলি এবং দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনেও সভা করেন মোদী। ভাসলেন জনজোয়ারে। জনসভা থেকেই জোট নিয়ে মুখ খোলেন মোদী। তার সাফ কথা, বাংলায় যতই আলাদা লড়ুক, দিল্লিতে সিপিএম তৃণমূল মিলে মিশে একাকার। जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट वो टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए। इनका जो खेल चल रहा है ये एक ही सिक्के की दो बाजू है। বাংলায় এসে শাসক তৃণমূলের একাধিক দুর্নীতি নিয়েও সরব হন মোদী। সভা মঞ্চ থেকেই লুঠের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। मोदी की गारंटी है, पहले मैंने गारंटी दी थी न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। রাজ্যে ওবিসি দুর্নীতি নিয়েও তৃণমূলকে তুলোধনা করেন প্রধানমন্ত্রী। সংরক্ষণ নিয়ে নোংরা খেলা খেলছে বলে তৃণমূলকে তোপ দাগেন তিনি। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। इसका ताजा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखा है। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था।
मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। এছাড়া সন্দেশখালী ইস্যুতেও সরব হতে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। বাদ যায়নি সন্ন্যাসীদের প্রতি অপমানজনক মন্তব্যের প্রসঙ্গ। আগামীকাল বুধবারও বাংলায় প্রচার করবেন মোদি। ভোটমুখী কাকদ্বীপে তাঁর শেষ জনসভা। রিপাবলিক বাংলা।